ओके, वी आर लाइव। सो आज का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। फ्रॉम फियर टू फैक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग मंगल दोषा साइंटिफिकली। और मैं आज बैकग्राउंड भी लगाया हुआ हूँ भारत मंडपम, जहाँ पे G20 समिट हो रहा है। तो जस्ट इट्स अ बिग थिंग हैपनिंग, तो इस वजह से मैंने ये बैकग्राउंड लगाया है। आज का सेशन कई मायनों में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि साहिल भैया के सेशंस को बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, पसंद करते हैं उनके सेशंस को शेयर करना। एंड टुडे ही हैज कम अप विद अ टॉपिक जो सब जानना चाहते हैं कि मंगल दोष क्या होता है। उसमें बहुत सारे लोग डर जाते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि क्या है। आज उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो भी लोग ये देख रहे हैं सत्वा टॉक्स, तीन चीजें सत्वा टॉक्स में होती है। पहला, आपके चेहरे पे मुस्कान आती है। दूसरा, आपकी लाइफ सेलिब्रेशन बनती है। तीसरा, हम सब मिलके औरों के भी जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए। इसी विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। गुरुदेव का विजन ही हमारा मिशन है। और साहिल भैया के बारे में बताना चाहूंगा मैं, जो लोग नए हैं उनके लिए। So talking about him, he's a Art of Living senior teacher and thepracticalJyotish.com उसके ओनर है। and he's a globally renowned astrologer। and thepracticalJyotish.com को it's a award winning startup। he is a graduate from IIT Kharagpur and obviously a globally renowned astrologer counselor. He has traveled across the world to conduct various astrology workshops and seminars. He is very popular for his research on bringing out scientific aspects of spirituality and astrology. He is an international art of living teacher, a facilitator for more than 30 art of living programs. And today he is here with us. बहुत बहुत स्वागत है साहिल भैया आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि मंगल दोष क्या है, कैसे इसके ऊपर भ्रांतियां है, क्या फैक्ट्स है। यस, ओवर टू यू। Yes, Mangal Dosh. So yeah, let us chant Om 3 times before starting the session. Let's close our eyes. Breathe in. Om. Slowly and gradually, you can open your eyes. Yeah, तो मंगल दोष, it is one of the most popular term in astrology. जब से एस्ट्रोलॉजी चालू हुआ है, people have a fear कि okay, ये मंगल दोष क्या होता है, मांगलिक का मतलब क्या होता है. Okay, so today I have made a very beautiful presentation especially for this session on mangal dosh. So yes, my screen is visible to all of you. Yeah. So as you can see, so many people are like, there is a infographic here. One person is sitting on the chair. I am a manglik. Am I doomed? So no, you are not. So I am pretty sure after watching this session, किसी को ऐसा लगता है कि वो मांगलिक है, उसको लगता है कि मेरी लाइफ, स्पेशली मेरी रिलेशनशिप, मैरिज में प्रॉब्लम होगी. So they will be happy after this session. I am pretty sure. So let us start with a small quiz. Okay. So can you write it in the chat box? What is the common between these personalities which you can see in the picture? ये जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं इस फोटो में, इन लोगों के बीच क्या कॉमन है? थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, बट it just came in my mind just 10 minutes before the session. So I thought, okay, let's do this quiz. Okay, so yeah, you can put it in the chat box. Somebody is saying leadership, okay. Energy, Masu's warrior quality, okay. Fighters, is pro sports, okay. Warrior kind of energy. Mangal dosh, okay, interesting. Abhishek has reached quite close. Josh, okay.
What else? कितने लोग हैं मीटिंग में? आई थिंक दे आर 25 प्लस पीपल. ओके, कम ऑन. और लोग फायरी. ओके, वेरी नाइस. या फायरी. नवगन, अनुपमा जी, अनीता जी, संगीना. या डोमिनेंट. ओके. ओके. Famous people. Yes. Leadership, energy, warrior. Okay. So, all of you are correct. And what Abhishek told, Mangal Dosh, that is actually more correct. Manglik. Yeah, these all people are Manglik also. And the beauty about these people is their Mangal is very dominant. It is very strong in their Kundli. And can you see how they are utilizing their Mangal? By entering into a field and making career in such a field where you need that energy, that passion, that quality of a warrior. Like Hitler, you can see Hitler is not considered as a good person, but he was very passionate about what he was doing. He was doing it in a negative way, but that passion was in. So Mangal actually represent that energy, that passion about doing something. Okay, that sport, that warrior quality. So these all are the people which are having the Mangal energy in it. Okay, so now when that energy of warriorship goes in the field of marriage, in Hindi also I will speak कि इन सब ये सब ऐसे लोग हैं इस चित्र में जो आपको दिख रहे हैं, इन सब का मंगल बहुत प्रबल है और लकीली और अनलकीली दे आर मांगलिक also, जैसा कि some people has written. Okay, लेकिन जब when we spoke about marriage, so generally people don't like more warrior quality in the field of marriage. Why? Because if somebody is very aggressive, so he will be a little dominant और लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे and nobody likes more fights in the marriage. Is there anybody जिसको लड़ाई झगड़े करना ज्यादा पसंद है? हो भी सकता है, इनका मंगल बहुत स्ट्रांग है, they are into the field of fighting also. There can be some people, but in general I am talking. Okay, so when there is an influence of Mangal in the 7th house of your कुंडली, 7वां भाव जो कुंडली का होता है, that is the house of marriage. तो उस पे जब मंगल का इन्फ्लुएंस होता है, that is actually called मंगल दोष. Okay, so this is again this slide shows what is the general characteristics of Mangal. So I have highlighted the one of the main general characteristic of Mangal is hot temperament with the warrior mentality. Okay, so suppose those person who have a strong Mangal and who especially who has a influence of Mangal in their 7th house, it is called Mangal Dosh. I have a separate slide for that also. Okay, so in the field, the institution of marriage, they think as a battlefield और उसमें थोड़ा सा उनका warrior mentality रहता है. That's why it is recommended कि उनकी जो शादी हो वो भी not I will say exactly warrior mentally, they are very passionate about marriage, relationship, how they connect with other person. So if somebody is totally opposite, उसको थोड़ी सी space चाहिए है and they don't have that much of passion for a particular, they are more dispassionate, जिनका मंगल या जिनका किसी बहुत ही मून या बहुत ही सौम्य ग्रह का एस्पेक्ट होगा, so then it brings a mismatch. Okay, so influence of Mangal on the 7th house of Kundli, on the marriage house of Kundli is called Mangal Dosh. अब मंगल की 4 दृष्टियां होती है. So can anybody write what are the different aspects of Mars? हर planet की अलग अलग 7वीं दृष्टि तो होती है, जिस घर में बैठता है उससे 7वीं दृष्टि में देखता है. इसके अलावा भी मंगल, शनि और गुरु कुछ उसकी स्पेशल दृष्टियां भी होती है. So yeah, let me see. 4th and 8th. Okay, 4th, 8th and what else? 3 दृष्टि होती है मंगल की. Somebody has written 4th and 8th. 10th दृष्टि शनि की होती है, मंगल की नहीं होती. Okay, somebody is asking what if someone is having very strong Mangal, strong Rahu and all this. Okay, this we can discuss later. 35 years of age. Okay, I have taken this age wala point to be. 7, 4, 7 and 8. Okay, so 4th, 7th and 8th मंगल की 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टियां होती हैं. तो मंगल आपकी कुंडली में किसी भी ऐसी पोजीशन पे बैठा है, अगर वो
सेवंथ हाउस में बैठा है या किसी भी ऐसी भाव में बैठा है जिससे कि चौथी, सातवीं या आठवीं दृष्टि से वो आपके सातवें भाव पे इम्पैक्ट डाल रहा है, सो दैट इज मंगल दोष. ओके, सो यस, हियर यू कैन सी. So if somebody is having Mangal in the first house, so this is always the first house in the Kundli. Okay, this is the second, this is third, fourth, fifth, sixth, seventh. So this is the house of marriage. तो पहले हाउस में बैठा है तो सातवीं दृष्टि शादी वाले हाउस पे होगी, तो दैट इज कॉल्ड मंगल दोषा. चौथे हाउस में बैठा है 1 2 3 4, दैट इज अगेन मंगल दोषा. सेवंथ और एट्थ हाउस आर लाइक, उसमें मंगल बैठा है तो इट इज लाइक इवन हायर मंगल दोषा, क्योंकि मंगल का डायरेक्ट इम्पैक्ट है. देन ट्वेल्थ हाउस में बैठा है तो भी आठवीं दृष्टि सेवंथ हाउस में होगी, सो दैट इज अगेन मंगल दोषा. सो आई हैव टेकन अ quote from the this main book of astrology, PPH. The meaning of it is कि मंगल किसी की भी कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में बैठा है तो उसे मंगल दोष कहा जाता है, और जिनकी कुंडली में ये मंगल दोष है उन्हें मांगलिक कहा जाता है. तो दिस इज द डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मंगल दोषा एंड मांगलिक. सो नाउ यू विल सी कि 12 भाव है, उसमें से भी मंगल दोष फिर 3 तरह के होते हैं. एक होता है लग्न से देखा जाता है, तो किसी के लग्न से ये पोजीशन है तो वो 100% मंगल दोष होता है. फिर अगर किसी के चंद्र से मंगल चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में बैठा है तो वो चंद्र से मंगल होता है. एंड देन शुक्र से भी मंगल दोष देखा जाता है, जो कि 50% वेटेज होता है. आपने सुना होगा आंशिक मांगलिक, तो जिनकी कुंडली में मान लो लग्न से मंगल दोष नहीं है लेकिन चंद्र और शुक्र से मंगल दोष है, तो उनको बोलते हैं आंशिक मांगलिक. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मांगलिक एंड मंगल दोषा. एंड व्हाट इज मंगल दोषा? आई हैव डिफाइंड प्रीवियसली. दे आर मोर पैशनेट, they have more energy about warrior energy, warrior mentality, especially when it goes into marriage, so it becomes little tricky. Okay, now let us see what are some other theories about mangal dosha and how correct they are and how correct they are. So इस पे हम बाद में आते हैं, पहले ये देखते हैं. तो मंगल अगर दूसरे भाव में है और 11वें भाव में है तो भी इंसान मांगलिक होगा. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री ऑन दिस? मेनी पीपल से दिस, बट आई हैव नॉट रेड इन एनी स्क्रिप्चर कि दूसरे और 11वें भाव में भी मांगलिक होता है. तो दिस इज समथिंग, इफ इन योर कुंडली मंगल इज सिटिंग इन द सेकंड हाउस एंड 11th हाउस, लग्न से मंगल दोष नहीं है, चंद्रमा और शुक्र की आपको प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, वहां से हो सकता है. ओके, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 28 की उम्र के बाद मंगल दोष कैंसिल हो जाता है. सो दिस इज अगेन समथिंग विच आई हैवंट रेड एनीवेयर. तो किसी ने किसी ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजी की बुक में पढ़ा हो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सो डायरेक्टली मैसेज मी. सो दीज टू थिंग्स आर वेरी पॉपुलर बट दे आर मिथ as per my research. Okay, देन वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ऐसा हो जाता है कि अष्टम मंगल बहुत ही खतरनाक होता है और नवांशा में भी उसका बहुत खतरा होता है. तो किसी की कुंडली में अगर अष्टम भाव में मंगल है तो उनको दे शुड डू मैच मेकिंग वेरी केयरफुली. या जिससे शादी होने वाली उसके अष्टम भाव में मंगल है, लग्न या नवांश चार्ट में, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. सो दैट इज एक्चुअली वेरी ट्रू. इट इज द हाईएस्ट अष्टम भाव का मंगल. और मंगल के साथ और ग्रह जैसे कि राहु, केतु, शनि, मैलिफिक प्लैनेट बैठ जाते हैं तो मंगल दोष बढ़ जाता है. तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, सो somebody is asking, Manishi is asking, if Mars in 12th house is also exalted in Capricorn, will the Mangal dosh amplify? Yes, the Mangal dosh will amplify. सो मंगल की जितनी डिग्री, वी विल कम टू इट. थोड़ा सा अभी पार करके रखो ये क्वेश्चन. वी हैव टू सी फ्यू अदर थिंग्स आल्सो कि मंगल दोष पे दृष्टि किसकी पड़ती है. अगर गुरु की दृष्टि पड़ती है मंगल पे तो मंगल दोष कैंसिल हो जाता है. वी विल कम कि व्हाट आर द एक्सेप्शन, किन किन केसेस में मंगल दोष कैंसिल हो जाता है. तो एक और देयर इज अ वेरी सीरियस कॉम्बिनेशन कि अगर आपका कुंडली का 7वें भाव का लॉर्ड, 7वां हाउस और शुक्र, अगर तीनों ही मंगल से कहीं ना कहीं से अफ्लिक्टेड है, मंगल का प्रभाव है अगर 7th लॉर्ड पे, 7th हाउस पे और शुक्र पे,
तो उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंगल दोष बोला जाता है। जैसे कभी कभार लोग बोलते हैं ना बहुत हैवी मांगलिक है। सो अगर 7वां हाउस पे 7वें लॉर्ड पे और शुक्र तीनों पे मंगल का प्रभाव है, दैट इज अ लिटिल ट्रिकी मंगल दोष। तो सामने वाले का भी ऐसा ही थोड़ा कॉम्बिनेशन देखिए, यू हैव टू डू मैच मेकिंग। तो एनी डाउट यू कैन पुट इट इन द चैट। ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रेजेंस ऑफ राहु केतु और शनि भी मंगल दोष वाला इफेक्ट देते हैं। तो यस, काफी हद तक ये सही है। एंड इवन इट कैन बी यूज फॉर द ये अच्छे के लिए यूज किया जा सकता है। क्योंकि जैसे किसी की कुंडली में अगर मंगल दोष है और इसको किसी की कुंडली के साथ मैच करना है, उसके में मंगल दोष नहीं है, लेकिन स्पेशली शनि अगर उसी सिमिलर पोजीशन में बैठा है जो पहले की कुंडली में मंगल जिस पोजीशन में बैठा है, तो वो मंगल दोष को कैंसिल कैंसिल कर देता है। Okay, so we have seen in the first slide, if Mars is in the first, 4th, 7th, 8th, 12th house, और सामने वाले की पार्टनर की कुंडली में मार्स इस जगह नहीं है बट शनि इस जगह पे है, तो इन दैट केस ऑल्सो मंगल दोष इज कैंसर। तो दिस पॉइंट आई विल रिपीट वंस अगेन कि फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन मंगल दोष की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट दैट विल बी ही विल बी मोर पैशनेट, ही और शी विल बी मोर पैशनेट टुवर्ड्स लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन हाँ, व्हेन he or she is getting married, the person who is a मंगल दोष, तो उसके कंपैटिबिलिटी मैच होना बहुत जरूरी है, जो कि फिर जो सामने वाला भी मंगल दोष है उसी से मैच होती है। ओके, लेकिन द ट्रिकी पार्ट इज कि मैक्सिमम केसेस में, जैसे कि आप इस कुंडली में तो देखोगे कि 12 में से ऑलमोस्ट 5 भावों पे मंगल दोष है। इसका मतलब इस दुनिया में ऑलमोस्ट 40% लोग मांगलिक होने चाहिए, बट 40% लोग मांगलिक नहीं है। तो उसका रीजन ये है कि 40-50% जो केसेस में मंगल दोष होता है उसमें से ऑलमोस्ट 20-30% तो कैंसिल हो जाता है वो इन एक्सेप्शंस के केसेस में। सो नाउ लेट अस डिस्कस कि किन केसेस में मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। तो सबसे पहले तो मंगल दोष अगर लड़के और लड़की दोनों की कुंडली में है, सो दैट गेट कैंसिल, दैट एवरीबॉडी नोस। ओके, नाउ अगर लड़के और लड़की की कुंडली मिला रहे हैं और उनकी राशि मिल रही है, राशि की बहुत अच्छी मैत्री है, या फिर दोनों सेम गण के हैं और 27 से ऊपर गुण मिल रहा है कुंडली मिलान में, ठीक है, तो अगर एक मांगलिक है दूसरा नॉन मांगलिक है, तो मंगल दोष गेट कैंसल। आइदर सेम मैत्री और सेम गण शुड बी देयर एंड 27+ गुणा मैच होने चाहिए, उस केस में मंगल दोष नहीं रहता। देन लेट कम टू द पर्सनल चार्ट, मतलब उस नॉट अबाउट मैचिंग, कुंडली में मंगल दोष कब कैंसिल होता है? जब एक्सॉल्टेड जुपिटर या फिर एक्सॉल्टेड वीनस या फिर मूल त्रिकोण काफी स्ट्रॉन्ग वीनस या जुपिटर किसी कुंडली में वो लग्न में बैठे हैं अगर, ओके, तो उनकी सीधी 7वीं दृष्टि होती है 7वें भाव पे, और मंगल दोष की वजह से मंगल की दृष्टि 7वें भाव में होती है, तो मंगल की दृष्टि इज मेलिफिक एंड जुपिटर और वीनस की दृष्टि इज बेनिफिक। तो जितना वहां पे थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है उतना ही पॉजिटिव इफेक्ट जाना है, तो ये न्यूट्रलाइज होता है। तो पावरफुल जुपिटर और वीनस का एस्पेक्ट 7वें भाव पे या फिर मंगल से 7वें पे मंगल दोष कैंसिल कर देता है। दिस हैपेंस इन मैनी ऑफ द केसेस। ओके, देन अगर मंगल वक्री है, रेट्रोग्रेड है, डेबिलेटेड है, नीच का है, ओके, तो जैसा कि मेरे को क्वेश्चन आया था एक्सॉल्टेड है, तो एक्सॉल्टेड मींस इट इज मोर स्ट्रॉन्ग, सो इट मे नॉट एक्चुअली कैंसिल द मंगल दोष, लेकिन डेबिलेटेड मींस इट इज वेरी वीक। तो जब वीक है तो उसका जो इन्फ्लुएंस होगा 7th हाउस में वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो उसमें हम मंगल दोष को कैंसिल कर मान लेते हैं। फिर व्हेन मंगल इज सिटिंग इन द एनिमी हाउस, तो मंगल का एनिमी कौन होता है? मरकरी। मंगल हैज ओनली वन एनिमी, मरकरी, बुध ग्रह। तो बुध के घर में बैठा है मिथुन या फिर कन्या राशि में बैठा है अगर मंगल, ओके, तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। तो सी नाउ यू कैन सी सो मेनी कंडीशंस आर देयर। जुपिटर वीनस का पावरफुल एस्पेक्ट, मंगल अगर वक्री है, नीच का है, शत्रु के घर में बैठा है, या फिर कमवस्त हो रखा है। ओके, कमवस्त मीन सूर्य के 5 डिग्री या 10 डिग्री के अंदर है। ओके, तो मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। ओके, सो all those who have mangal dosh in their kundali do apply these principle, and I have seen so many astrologers, even in the mobile application you will see, you won't find these cancellation rules. Okay, so these you have to put it manually,
एंड इवन जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो दे शुड रिमेम्बर दिस थिंग कि कुंडली में अगर जैसे मंगल दोष आपने बोल दिया या फिर इन पोजीशन पे मंगल बैठा है तो डायरेक्टली मंगल दोष मत बोल देना उसको, ये रूल्स अप्लाई करना कि अच्छा इनमें से कोई रूल तो नहीं आ रहा है, कैंसिल तो नहीं हो रहा है मंगल दोष, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी. ओके, देन व्हाट एल्स, मोर रूल्स कॉम्बिनेशंस आर देयर टू कैंसिल मंगल दोष. कि केवल केंद्र में केवल बेनिफिक ग्रह, बेनिफिक मतलब गुरु, शुक्र, चंद्रमा या बुध अगर केंद्र में है सारे या फिर त्रिकोण में है तो फिर मंगल दोष कैंसिल हो जाता है. ओके, या फिर जितने भी मेलिफिक ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, जो कि शनि हो गया, सूर्य हो गया, राहु केतु मंगल हो गया, ये तीसरे या छठे हाउस में है, मंगल को हटा के तो भी मंगल दोष कैंसिल हो जाता है. दिस इज वन मोर कॉम्बिनेशन फॉर कैंसिलिंग मंगल. ठीक है, फिर एनी मेलिफिक प्लेनेट प्लेस इन द सेम भावा और प्रोस्पेक्ट चार्ट एज मंगल भावा. ओके, जैसा कि हम लोगों ने देखा भी शनि के केस में, तो शनि के में सारे में मंगल कंसिडर होता है. अदरवाइज किसी के कुंडली में राहु मंगल चौथे भाव में बैठा है और सामने वाले की कुंडली में राहु केतु शनि या फिर सूर्य भी इवन चौथे भाव में बैठा है तो वो मंगल दोष को कैंसिल मान लिया जाता है when we do kundli matching. Okay, then third point, if Mars is in the 7th house and aspected by Jupiter, मंगल दोष is cancelled. Okay, तो पिछली स्लाइड में था कि जुपिटर और शुक्र बहुत मजबूत होने चाहिए, लेकिन अगर मंगल 7वें भाव में और जुपिटर की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, तो उनमें से कोई भी दृष्टि मंगल पे पड़ रही है तो फिर मंगल दोष कैंसिल हो जाता है. भले ही जुपिटर आपका डेबिलिटेड हो, एक्सॉल्टेड हो, डजंट मैटर, इट जुपिटर एस्पेक्ट कैंसिल द मंगल दोष. ओके, देन लेट्स सी what else. We have some more cancellation exceptions. If Mars is conjunct with Jupiter, Moon और राहु, अगर गुरु के साथ बैठा है मंगल, चंद्रमा के साथ बैठा है मंगल और राहु के साथ बैठा है मंगल, तो मंगल दोष कैंसिल हो जाता है. If the prospect has Rahu, Shani or Mangal in 3, 6, 11, it cancels the bhava, it cancels the native मंगल दोष. राहु शनि और मंगल अगर 3, 6, 11 में है तो फिर उससे भी मंगल दोष कैंसिल होता है. If Jupiter is in Kendra or Trikona or Shani is in 11th or Rahu is in 6th, the मंगल dosha is cancelled. Okay, so these are all the things which I am taking directly from BPH, ब्रेथ हो रहा, विद पारशर हो रहा, तो उसमें ये सारे रूल्स बताए हैं कि अगर इनमें से कोई भी रूल हो, गुरु केंद्र में है किसी का या फिर त्रिकोण में है या फिर शनि 11वें भाव में है या फिर राहु 6ठे भाव में है और मंगल दोष है इंसान को, तो भी मंगल दोष कैंसिल हो जाता है. ओके, व्हाट एल्स. या सो पहले इसमें हम क्वेश्चन ले लेते हैं, देन वी कैन डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स. तो किसी को इफ एनीबडी हैविंग डाउट और जिनको स्पेशली एस्ट्रोलॉजी आती है, जिनको इंटरेस्ट है, तो उन लोगों को स्पेशली इट विल बी वेरी एनलाइटनिंग कि कितने सारे केसेस होते हैं जिनमें मंगल दोष कैंसिल हो जाता है और हम कुंडली में जस्ट ऐप्स के थ्रू आ जाता है ही इज मांगलिक, या फिर जस्ट आप 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल देखिए, यू टेल मंगल दोष. सो विच इज यू कैन सी इतने सारे एक्सेप्शंस है कि ऑलमोस्ट 60-70% केसेस में मंगल दोष कैंसिल ही हो जाएगा. ओके, सो या एनीबडी एनी डाउट अबाउट कैंसिलेशन ऑफ मंगल दोष, एक्सेप्शंस, रूल्स? अनुरूपा जी को कुछ पूछना है लगता है. हाँ मुझे पूछना है. मेरी 8th हाउस में मंगल है और चंद्र है 1st हाउस में, मतलब लग्न में, तो दोनों दिख से ही मैं मांगलिक हुई हूँ, तो मतलब रेमेडीज क्या है? रेमेडीज क्या है? ओके, रेमेडीज आई हैव आल्सो रिटन इन सम ऑफ द स्लाइड, लेकिन सी बेस्ट रेमेडी फॉर मंगल दोष इज, सी मंगल दोष होना कोई दोष नहीं है, लेकिन जब वो शादी पे आता है, ओके, व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड, तो आपकी अगर पार्टनर को भी मंगल दोष है, उसका भी 8th हाउस में कोई शनि मंगल इस टाइप का प्लेनेट बैठा है, so that itself is a remedy. So the best remedy for mangal dosh is to marry somebody who also have that kind of energy pattern. I don't know why people has put it as a dosh. I would say it is like an energy pattern. ये एक energy pattern है.
ओके, तो आपका कुछ पर्टिकुलर एनर्जी पैटर्न है, तो सामने वाले का भी अगर वैसा ही एनर्जी पैटर्न है तो यू विल बी स्टेइंग मोर हैप्पी, राइट? तो दैट इज व्हाट। तो आई विल शो यू द रेमेडी ऑल्सो। लाल किताब में कुछ उपाय बताए हैं इसके, जो आपने प्रॉब्लम बताई है। लेकिन ठीक है, यू आर मैरिड और आपके हस्बैंड को मंगल दोष नहीं है, यू आर सेइंग। ओके, मैं अभी तो अनमैरिड हूँ, तो जब हाँ, तो ऐसा होगा तो। अनमैरिड हो ना आप, तो बस, तो उसके लिए कुछ रेमेडी करने की जरूरत नहीं। यू फाइंड समबडी हु आल्सो हैव मंगल दोष। ओके। ओके ओके, थैंक यू। ये बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, ये लाल किताब क्या है, जैसे वो उसके सो बारे लाल, जैसे कि ब्रेथ हो, पारेशर हो रहा एक किताब है, वैसे एक लाल किताब है। सो इट हैज, इट इज मोर ऑफ अ रेमेडियल बुक, जिसमें रेमेडीज बताई है हर दोषों की। लेकिन इन टुडेज टाइम दीज रेमेडीज आर नॉट दैट व्हाट यू से, कि इतनी एप्लीकेबल नहीं होती। आई विल शो यू बेटर व्हाट आर द रेमेडी फॉर मंगल दोषा। लेकिन दीज आर वेरी ओल्ड। ओके, सो ठीक है, दिस फर्स्ट रेमेडी, उज्जैन में जो मंगलनाथ टेम्पल है, यू कैन डू पूजा एट मंगलनाथ टेम्पल। ओके, तो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू फाइंड अ गुड ग्रूम ऑल्सो। या, सो दिस इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली डू। उज्जैन में you can get puja done in the Mangalam temple. Okay. Then if you are marrying a non-Mangalik person, so this Kumbh Vivah and with Shaligram Vivah is done as per the scripture. So that also, like scriptures में बताया, तो yeah, you can do. There is nothing wrong in that. और मांगलिक से ही शादी हो रही है तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मांगलिक की शादी हो रही तो कोई इशू नहीं है। देन दीज 3 4 5 रेमेडीज आर क्वाइट गुड। ये तो बोला ही जाता है मंगल के लिए कि रेड कलर की, क्योंकि मंगल लाल रंग से कनेक्टेड है, तो यू कैन डोनेट रेड मसूर दाल, रेड क्लोथ्स एंड गुड़। गुड़ डोनेट करने में भी बहुत अच्छा होता है जिन लोगों को जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप बस दे आए मंदिर में दे आए, जिन लोगों को एक्चुअल जरूरत है उनको आप रेड कलर की चीजें डोनेट करो, तो इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर मंगल दोष। देन मंगल इज कनेक्टेड विद ब्लड। Okay, so it is also really good if you can donate blood once or twice in a year. And बहुत लोगों को डर लगता है कि अरे ब्लड डोनेट करेंगे हमें कमजोरी आ जाएगी। नो, एक्चुअली इट improves your immunity and health. उससे क्या रहता है कि नया ब्लड बनता है, तो उससे आपकी स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी और बढ़ती है। स्पेशली आप अगर 30 40 50 तक के भी है ना इवन, तो आराम से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आफ्टर 50 ओके, आई कैन यू कैन से दैट, ठीक है इतना जल्दी नहीं बनेगा, लेकिन ब्लड डोनेटिंग ब्लड वंस अ ईयर इज वेरी गुड थिंग एंड एवरीबॉडी शुड डू। देन visiting Hanuman temple daily and chant Hanuman Chalisa. This is like a मोस्ट पॉपुलर रेमेडी फॉर मंगल एंड मंगल दोषा। सो अगर यही करो तो इससे क्या रहता है कि दो चीजें होती है, एक एक डिग्निटी, एक ऑस्पिशियसनेस। ओके, तो इन सब रेमेडी, स्पेशली worshipping Hanuman ji, reciting Hanuman Chalisa, it really makes Mangal more auspicious and gives more powerful result. Okay, and one more fast remedy, अगर आपको shortcut चाहिए तो there is a mantra, Om Karam Krim Krom Sa Bhomaya Namah. Mangal is the Bhumi Putra. Okay, so this is the Bij mantra for Mangal. So you can chant it 108 times, especially Ashtam Bhav में Mangal है, तो एक्चुअली यू कैन चैंट इट, और किसी और के भी अष्टम भाव में मंगल है तो इट विल रियली हेल्पफुल। ओके, सो देयर वाज वन मोर पीपीटी, व्हाट वाज दैट? या, मैरिंग अ मांगलिक बॉय और गर्ल लीड टू दैट। तो पहले जब, तो ये बहुत ही पॉपुलर था कि अरे मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी हो गई तो उसमें से हस्बैंड एंड वाइफ की मृत्यु हो जाएगी। बट ऐसा स्पेसिफिकली किसी स्क्रिप्चर में नहीं लिखा है कि मृत्यु हो जाएगी। देयर विल बी, या वन विल बी वेरी मच पैशनेट, सो देयर विल बी एनर्जी डिफरेंसेस, लेकिन मृत्यु के लिए थोड़े अलग कॉम्बिनेशन चाहिए। सो देयर विल बी इन्फ्लुएंस ऑफ 8th house लॉर्ड ऑल्सो एंड महादशा गोचर भी मिक्स हो गए, तो या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो जाए। बट इट इज नॉट लाइक हार्ड एंड फास्ट कि मांगलिक लड़के की नॉन मांगलिक से शादी हो गई तो उसमें से एक मर जाएगा, तो ऐसा भी, दिस इज ऑल्सो अ मिथ। ओके, so yeah, these were the main thing maybe I would say for now. So I have, I think, few questions. Let me see. Manish is asking, sun combust cancellation part 1 could not understand well. तो ये तो बहुत ही सिंपल है ना, सन के पास कोई भी ग्रह पहुंच जाता है
तो सन इज अ ब्राइटेस्ट प्लेनेट, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो वो सामने वाले की एनर्जी को एकदम ढक लेता है। लाइक सपोज गुरु जी के बगल में आप चल रहे हो, ओके, अभिषेक इज जस्ट वॉकिंग नेक्स्ट टू गुरुदेव, सो पीपल विल फोकस ऑन गुरुदेव मोर, नो अभिषेक या फिर मैं भी चल रहा हूँ तो मेरे मेरे को नहीं नोटिस करेंगे। तो सन इज लाइक दैट, सन इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट, तो उसके पास कोई भी आ जाता है तो फिर उसकी एनर्जी दब जाती है। तो इसी वजह से अगर मंगल सूर्य के पास एकदम है किसी की कुंडली में, जो कि आप डिग्री से देख सकते हैं, सन कितनी डिग्री पे है, सूर्य कितनी मंगल कितनी डिग्री में, तो वो मंगल की एनर्जी ढक जाएगी, सूर्य की एनर्जी रहेगी, तो इस वजह से मंगल दोष को कैंसिल माना जाता है। स्पेशली अगर 5 डिग्री के अंदर है, लाइक सूर्य है 20 डिग्री पे और मंगल है 15-16 डिग्री पे या फिर 23-24 डिग्री पे, तो फिर मंगल इफेक्ट विल बी कंसिडर कैंसल। यस, एंड इन द सेम हाउस, तो ऑब्वियसली सेम हाउस में है तो फिर ज्यादा चांसेस है कंबस्ट होने के, लेकिन दूसरे हाउस से भी कंबस्ट हो सकते हैं। लाइक सपोज किसी का सूर्य मेष राशि में 29 डिग्री में है और मेष राशि के नेक्स्ट राशि होती है टॉरस, तो किसी का मंगल टॉरस में 2-3 डिग्री में है, तो वैसे भी कंबस्ट हो सकता है, लेकिन हाँ साथ में सेम हाउस में तो और ज्यादा कंबशन का इफेक्ट रहेगा। ओके, साई इज आस्किंग मंगल इन सेवंथ लॉर्ड इन 11th राशि एंड जुपिटर इन 8th, तो मंगल 7वें भाव में है, 7वां लॉर्ड 11th राशि में है, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द 7th लॉर्ड ऑल्सो, क्योंकि मंगल अगर जेमिनाई वर्गो में चला गया तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा मंगल दोष, शत्रु राशि होती है। या साई कैन यू राइट डाउन 7th लॉर्ड ऑल्सो, हु इज द 7th लॉर्ड and who is the 11th राशि is which is the 11th राशि and Jupiter in 8th, तो Jupiter भी कौन सी राशि में है 8th हाउस में, वो भी लिखना पड़ेगा, then I can give you a exact answer कि हाँ मंगल दोष होगा कि नहीं और कितना होगा तो। yes, any question from YouTube या अभिषेक, you can check। यूट्यूब में एक बार चेक कर रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन है कि नहीं। यूट्यूब जस्ट अ सेकंड। नहीं भैया, इसमें तो अभी क्वेश्चंस नहीं आए, तो चैट में और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चंस यू आर हैविंग। यस, So I just share one guru story which Yes. happened yesterday only, very interesting guru story, मतलब बहुत छोटी सी गुरु स्टोरी है लेकिन कल ही हुआ। तो it was like I felt कि and sometimes you know something happens to you but later on you realize it that it is like a guru story happened to you। तो yesterday I have to take a session in astrology workshop around 3 दोपहर में astrology workshop का session रहता है and morning I had a dental treatment appointment। तो आई वेंट देयर, जनरली आई सी पंचांग इन द मॉर्निंग और पूरा देख दाख के ही जाता हूँ, पंचांग डेली देखने का मेरा रहता है, पता नहीं शायद कल भी सुबह देखी थी, बट एट दैट टाइम जिस टाइम पे मेरा डेंटल अपॉइंटमेंट था तो इट वाज अराउंड 11:30-12 और बहुत ज्यादा पहले तो ट्रैफिक था बैंगलोर देयर वाज सो मच ऑफ ट्रैफिक। यस, टुमारो कल तो एकदम बंद है, तो जो लोग बैंगलोर के हैं स्टे इन योर होम ओनली, कल तो ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक की वजह से पूरा बैंगलोर बंद रहेगा। And yesterday also there was so much of traffic, so I was already late for the appointment। फिर क्या हुआ, वो डॉक्टर ने किसी और को ले लिया डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, तो आई टोल्ड कि 15-20 मिनट ही तो लेट हुआ, बोले नहीं अभी तो दूसरा पेशेंट चला गया है, तो अभी तो यू हैव टू वेट। तो आई वॉज वेरी फ्यूरियस कि आई हैव टू, मैंने बोला कि मेरे को और भी काम है, मेरे को जाना है जल्दी, और भी काम है, तो मेरा कर लो पहले। बोले नहीं अभी नहीं हो पाएगा, तो आई हैव टू वेट लाइक 30-40 मिनट। तो आई हैव पुट द मैसेज इन द ग्रुप कि आज थोड़ा सा वर्कशॉप लेट होगा, आई एम आउटसाइड, इस तरह से। फिर ऐसे करके 12:30 के अराउंड 12:45 माई ट्रीटमेंट स्टार्टेड और 1-1.5 घंटे में खत्म हो गया। देन आई केम बैक, अच्छे से लंच वंच करके आई टुक द वर्कशॉप, एवरीथिंग वेंट नाइट। सो आई डोंट नो, इन द नाइट, कल रात की बात है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई जस्ट थॉट कि अच्छा देखते हैं कि, बिकॉज आई वाज वेरी एंग्री कि एकदम अपॉइंटमेंट के जस्ट 5-10-15 मिनट लेट आया, तो आई वाज लाइक कि आई हैड ऑलरेडी समथिंग प्लान्ड, स्पेशली सेशंस आर देयर, सो आई हैव टू, व्हाई यू गिव मी, यू कुड हैव गिवन मी 12:30 टाइप से। तो आई जस्ट चेक एंड आई फाउंड आउट कि वो जो टाइम था ना 1-1.5 घंटे वाला, जिस टाइम मेरा स्लॉट था, अपॉइंटमेंट था, दैट वाज लाइक वेरी बैड टाइम, वेरी बैड मुहूर्त था। और उस टाइम मतलब वो डेंटल ट्रीटमेंट मेरा कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती,
it would have been even very troublesome. मतलब उस दिन का सबसे खराब टाइम था वो. Okay, and I was like, oh my god. This is Guru Grace. मतलब you all of you don't know even कि वो तो I'm an astrologer, I could figure out कि अच्छा मतलब जो डिले हुआ और जो चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई उस वजह से भी सी मेरा कितना फायदा हुआ. सब चीजें सारे ट्रीटमेंट एवरीथिंग वेंट सो वेल एंड इवन द वर्कशॉप एवरीथिंग वेंट सो वेल. ओके, बट मैनी ऑफ अस थिंक्स कि अच्छा ये चीज समय पे होनी चाहिए, नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, या आई हैव डन दिस स्टिल लाइक लेट हो रहा है, ये हो रहा है. वी लूज अवर पेशेंस. बट इफ यू विल सी एस्ट्रोलॉजिकली ना, यू नो दिस इज वेयर एस्ट्रोलॉजी रियली हेल्प्स. उससे यू कैन फिगर आउट लॉट ऑफ थिंग्स कि अच्छा ये इस समय अगर हम जो चाहते थे वैसा का वैसा हो जाता तो हम परेशानी में फंस जाते उल्टा. तो दिस इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल गुरु स्टोरी कि कोइंसिडेंटली भी हमारी लाइफ में स्पेशली दोस्त हु आर डूइंग गुड वर्क, साधना सेवा सत्संग, तो उनको टाइम वगैरह सब ऐसा सेट हो जाता है. अगर उनने जानबूझ के भी कुछ गलत सेट किया है ना तो वो ऑटोमेटिकली डेस्टिनी ऐसी होती है कि उसका सही सेट करके सही आउटपुट देते हैं. सो दैट वाज अ वेरी गुड लर्निंग. यस्टरडे ओनली इट हैपेंड, सो आई थॉट जस्ट आई शुड वाओ, शेयर. वंडरफुल वंडरफुल गुरु स्टोरी भैया, ये तो बहुत Yes. मजा आया. किशोर जी का एक सवाल आया है, इज मंगल ग्रह लिंक्ड विद डेप्थ? If it is in the debt or debt, डेप्थ, मृत्यु, कर्जा कर्जा. कर्जा, तो अगर 12वें भाव में मंगल ग्रह है या 12वें भाव में आपकी मंगल की राशि है तो फिर उसको वो कनेक्ट हो सकता है कर्जे से, बट नॉट नेसेसरी. बट वन थिंग आई वुड से कि मंगल इज अ वेरी एक्टिव प्लेनेट. ठीक है, एनर्जी का प्लेनेट है. तो उसको ऐसे ही लोग पसंद है जो बहुत डायनेमिक एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डेली आसन करते हैं, अपना मतलब एक्टिव रहते हैं, घर में बैठे टीवी मोबाइल नहीं देखते रहते हैं. तो आपका अगर कर्जा बढ़ रहा है और आपका मंगल, आपको लग रहा है मंगल कनेक्टेड है, तो हो भी सकता है. तो यू हैव टू बी मोर एक्टिव. अगर किसी का 12वें हाउस में मंगल बैठा है, लॉर्ड बैठा है, तो या दैट इज वन वेरी पावरफुल रेमेडी फॉर मंगल. यस यस, वंडरफुल वंडरफुल. अभी आप वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में जा रहे हो, वहां पे भैया क्या माहौल होने वाला है, थोड़ा उसके बारे में बताइए. Yes, very nice, very nice. I've been talking yesterday. I was in call with Virat Chirania. So there is a lot of activities are happening. So maybe if anybody interested to do online seva, event promotions की या फिर social media की, तो they can also message me actually. I will add you to one of the social marketing group. Okay, so that is also very nice story how I got the visa. Abhi bhi there are so many friends of mine, they are trying to get a visa, but they haven't got the visa. But it's, I tell you, it is like Guru Grace is like so powerful कि उनको पता है किसको कब कहाँ सेट करना है, किसको सेट नहीं करना है. बोथ वेज, इट हैपेंस इन बोथ वेज. तो सब लोग चाहते हैं कि सब सेट ही हो जाए, नहीं, कभी कभार जब सेट नहीं होता, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So yeah, so I'll just share my schedule also, World Cultural Festival. So I will be reaching Florida on 23rd of September. So 3-4 दिन, 2-3 days I will be doing Seva in Florida for WCF also, and I'm considering some of the seminars and camp also in Florida, Tampa. तो जो लोग भी यूएस से वीडियो देख रहे हो तो they can just note it down. If somebody is in Florida, you can just reach out to me. I'll share a WhatsApp group link also. Couple of WhatsApp group link also, so you can get connected for WCF Seva also and for astrology related queries also. Then 26 के बाद से तो पूरा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में ही रहेगा. और इस बार तो वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल, यू नो, बाइडेन इज लाइक, अभी G20 समिट चल रही थी, तो ही इज इन टच विद गुरुदेव श्री रविशंकर जी फ्रॉम लाइक 2005-2006, ऑलमोस्ट लाइक 15-20 years. आप पूरा पुराना वीडियो देखोगे ना लव मूव्स द वर्ल्ड में, तो देयर इज अ स्पीच, गुरुदेव इज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, और बाइडेन इज सेइंग, आप लोगों ने देखा भी होगा कि व्हाट गुरुदेव इज डूइंग, इट इज एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट टू डू इन दिस वर्ल्ड. और वो अभी इंडिया आने का भी उसका एक बहुत बड़ा वो ये था कि ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द एक्टिविटीज विद गुरुदेव इज डूइंग. ओके, और अभी देखो हम लोगों ने वसुदेव कुटुंबकम कब से बोल रहे हैं, एंड नाउ यू सी इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूके प्राइम मिनिस्टर, यूएस प्राइम मिनिस्टर, अब G20 का लोगो ही था वसुदेव कुटुंबकम. G20 का लोगो ही था वसुदेव कुटुंबकम. सो द मिशन विच गुरुदेव हैड
Now it is like globalized. Everybody is actually following art of living only. बहुत लोगों को पता नहीं है अब, और बहुत लोगों को पता भी है. लेकिन see, you see नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, ये दुनिया के मतलब top most minister है, and they people are aware about art of living philosophy. They have met Gurudev Sri Ravi Shankar ji many a times and done lot of seminar with that. तो जब आप कोई भी इंसान दुनिया का ना एक बार गुरुदेव से मिलता है, उनकी फिलॉसफी सुनता है और उनसे थोड़ा बात करता है, तो उनका जो थॉट प्रोसेस होता है ना, गुरुदेव रियली इन्फ्लुएंस द थॉट प्रोसेस ऑफ द पर्सन. तो ये जो मोदी जी और ये बाइडेन वगैरह जो डिस्कशन और जो प्लानिंग चल रही है ना, इफ यू विल सी द वीडियोस आल्सो, इट इज एक्चुअली टू लॉट ऑफ एक्सटेंट influenced by art of living and Gurudev Sri Ravi Shankar ji. So yeah, so this is something really interesting. Maybe this can be cut and put short video, Abhishek, कि कैसे मोदी जी and Biden is also what they are doing, it is somehow connected with Gurudev Sri somehow. क्या it is like actually we have been in all the courses we are doing Sangha Chatvam Vasudhaiva Kutumbakam. And let me bring one more point over here. एक तो Vasudhaiva Kutumbakam, it's a big thing which has came up. Second, कि इतना large gathering का event has never happened in DC. So yes, it is a big thing for Americans also. इतने large scale का event, and I guess उसका एक 3D video out हुआ है, जो animated video एक बनाया है कि how the look and feel will be there while the World Culture Festival will be happening. बहुत सारा space खाली छोड़ा है between the stage and the people, and it will be like a massive thing happening, and the world media will capture it, I guess, that time. Yes. तो रियली लाइक जो लोग भी WCF की सेवा से कुछ जुड़े नहीं है, तो दे कैन एक्चुअली मैसेज मी. आई कैन ऐड यू टू WCF ऑनलाइन सेवा ग्रुप, एंड यू कैन डू लॉट ऑफ सेवा फॉर WCF सिटिंग इन इंडिया ऑल्सो. So that will be a really good thing. And anyways, like आप आर्ट ऑफ लिविंग से अगर जुड़ भी गए हो और लोगों को जोड़ते हो, तो कहीं ना कहीं वो सब कनेक्ट वहीं होते हैं. So that is everybody is doing anyway. So we have some little more questions. So let me just take it. Okay. So somebody is asking, I am taking from down. What is the timing of WCF? Okay. So yeah, we should not forget कि बहुत सारे लोग पहली बार भी सेशन अटेंड करते हैं YouTube से भी. तो WCF is 29th, 30th and 31st of September. 29th, 30th September and 1st of October. Friday, Saturday, Sunday. Okay. And 2nd September also Gurudev is taking some session in DC. And 3rd October he is flying to Canada. 2nd October again he will be in US. 3rd October he is flying to Canada. Timing will be almost whole day. पूरे दिन ही चलेगा. But I don't know, maybe you will get a link or something like that. So I'll be in USA. तो कुछ भी मेरे को update मिलेगा. So I'll post it in the group if you will be added in some of the group. So yeah. So you are going. Okay. So you are going. So anyways you will get to know. So yeah. So what was one question? Sun combust cancellation part. I could not understand. Okay. So yeah, that is it. और किसी को कुछ बोलना है? Wonderful भैया ये तो बहुत जबरदस्त रहा सेशन, एंड रियली इट वाज अ सेशन जहाँ पे आपने बहुत सारे मिथ बर्स्ट किए, फैक्ट्स बताए. मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए. आप लोग अगर शेयर करोगे तो सबको पता चलेगा कि जो आजकल भ्रांतियां हैं वो नहीं है. एंड ऑब्वियस सी बात है कि व्हेन लाइक जो नहीं होते हैं मंगल दोष, कोई दोष नहीं है. जैसे भैया ने बताया कि बहुत सारे जो टॉप लीडर्स है वर्ल्ड के, विराट कोहली, ये सब का मंगल है, ऐसा नहीं है, नहीं था. सब मांगलिक है एक्चुअली, मंगल दोष ही नहीं है. ये देश है मांगली ऐश्वर्या, so many people. वो अनुष्का शर्मा वो है कि नहीं, वो देखने की बात है. हाँ कुछ तो था. आई हैव सीन, पूजा वगैरह कराई थी. लेकिन हाँ इट इज गोइंग सो वेल. इवन नहीं भी है तो अभी तो फ्रॉम द आउटर यू सी इट इज गोइंग वेल, अंदर से यू नेवर नो. या डेफिनेटली. तो मैं सभी को कहूंगा कि शेयर दिस सेशन टू मैक्सिमम पीपल, सब्सक्राइब दिस चैनल सत्वा टॉक्स. ऐसे ही सेशन हम लोग रोज लाते हैं
एंड जब साहिल भैया भी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड साहिल भैया जाने से पहले कोई आखिरी मैसेज जो आप लोगों को देना चाहोगे? एंड उससे पहले साहिल भैया का जिनको भी नंबर चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर एंड यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। एंड उसके आगे की बात वहां पे आप उनसे कर सकते हो। एंड यस साहिल भैया, जाने से पहले कोई आखिरी मैसेज जो आप देना चाहोगे? या सो जैसा कि आज का वीडियो था ना मंगल दोष पे, तो एक्चुअली इट इज अ एडवांस लेवल एस्ट्रोलॉजी। तो स्पेशली जो तीसरी चौथी पांचवी स्लाइड थी ना, वो शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई होगी। तो इसलिए आई वुड जस्ट रिकमेंड एवरीबॉडी कि एटलीस्ट लर्न द बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो अभी आई हैव जस्ट 1 महीने की हम लोगों ने वर्कशॉप रखी थी एस्ट्रोलॉजी की, एंड इट वाज लाइक वेरी वेरी, like I don't know if somebody is there, maybe they can share their experience before closing. Anybody from the workshop is there? Manish ji is there, I think. Yeah, Manish ji. Yeah, I'm Yes. there. So, yeah, let's just hear from Manish ji. So he is a very senior living teacher from Bangalore itself. Yeah. Yeah, Jagir. So I actually attended astrology for the first time and realized that we are dealing with astrology. मतलब हम रोज ज्योतिष किसी न किसी फॉर्म में आता ही है। कभी ये फेस्टिवल में आ जाता है कि जन्माष्टमी आज है या कल है, कभी आता है कि रक्षाबंधन में इतने बजे से होगा क्योंकि कुछ आ गया है। फिर whenever we are doing marriages, तो उसमें भी हम लोग ये मांगलिक और ये सब डिस्कस करते रहते हैं। तो ये एक तरह का लिटरेसी है जो कि मिसिंग है, राइट? हमें कहीं सिखाया नहीं जाता ये सब। तो ये वर्कशॉप अटेंड करके बहुत कुछ क्लियर हुआ है, एंड आई थिंक दिस जस्ट अ बिगनिंग। एंड स्टडिंग विद समबडी नाउ इज अ मेडिटेटर who is having that good energy, it makes it very easy to comprehend and understand. So it was very useful. Thank you, Sahil ji. Yes, and we have one CA also. Priyanka, you are there, no? Priyanka, if you like to share something. So Priyanka was one of the youngest student of our group. जय गुरुदेव भैया। एक्चुअली मुझे साहिल भैया का मतलब साहिल भैया मुझे सत्वा टॉक से ही पता चले। 2 महीने पहले जब उन्होंने वो श्रावण महीने का वीडियो किया था तो तब मुझे पता चला साहिल भैया के बारे में, और मैंने उनसे कुंडली का एनालिसिस करवाया था। तब उन्होंने मुझे बताया कि तुम ऑकल्ट साइंस सीखो। तो थैंक्स टू सत्वा टॉक, जो बहुत ही अच्छा मतलब जो उन्होंने मुझे कनेक्ट करवा के दिया। एंड अभी मैंने उनका तुरंत एस्ट्रोलॉजी का जब वर्कशॉप अटेंड किया तो मतलब साहिल भैया हमेशा बताते हैं कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो डंडा मार के सिखाते हैं और कुछ टीचर चॉकलेट दे के सिखाते हैं। तो आई थिंक साहिल भैया सबको चॉकलेट दे के सिखाते हैं। बहुत ही मतलब सबके क्वेरीज इतना पेशेंटली हैंडल करते हैं, और कुछ भी क्वेरी पूछो आप वो हमेशा बोलेंगे या वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेरी। भले ही पता नहीं हमको कि सच में है या नहीं है, लेकिन साहिल भैया बहुत ही अच्छे से सब चीजें कवर करवाते हैं और सबके डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर करवाते हैं। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आई विल लर्न एस्ट्रोलॉजी, लेकिन बस मतलब हो गया भैया से जब बात हुई और सीख लिया तो इट वॉज वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड मतलब ऐसे लग रहा है कि सच में लाइफ चेंज होती है जब हम थोड़ी थोड़ी चीजें रूटीन में चेंज करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है अपने लाइफ में। तो यस, और साधना तो हम करते ही है डेली, सुदर्शन क्रिया, लेकिन जब पता चलता है कि प्लैनेट्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं साधना में, या फिर साधना के वजह से प्लैनेट्स कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं, तो और भी साधना में डिप्थ आती है। तो वो भी मैंने सीखा सेशन। सो थैंक यू साहिल भैया एंड सत्वा टॉक्स आल्सो। Yes. Okay, तो फॉर अदर पीपल ऑल्सो जिन लोगों को नहीं आती है, जिनको सीखने का इंटरेस्ट है, सो आई वुड जस्ट शो यू वन थिंग that I have put some of the very selected videos on YouTube also. There is a playlist, separate playlist, workshop में से कुछ बहुत ही अच्छे वीडियो उठा के, you can just type the name Learn Astrology with Sahil Singh Rathore and you will find actually lot of good content. तो जिसको भी इंटरेस्ट है ना, actually they will find it really helpful. Okay, so that was not, yeah, so this is something which will really help you, those who are interested. Okay, because it really helps you to understand a lot of secrets about your life and how you can live a life in a better way.
So yeah, that is what my ending words will be. और सभी लोग वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के लिए जो भी कुछ हो सके, जो भी सेवा से जुड़ पाए जुड़ो, एंड वॉच इट, स्प्रेड द गुरुदेव वीडियोस. अभी गुरुदेव के और ज्यादा वीडियोस आएंगे WCF के, तो यू जस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तीनों पर थोड़ा सा यू कैन डू सम सेवा रिगार्डिंग WCF. एंड सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. तब तक शुभ रात्रि. जय गुरुदेव. Thank you so much. Thank you so much, Sahil Bhaiya. It was pleasure to have you here. Thank you so much for coming and sharing. Jai Gurudev.